Hello my dear viewers, I welcome you all to Somyas Academy. Today in this lecture we are going to discuss about a very important topic, that is photodiode. It is a very important device for electronics perspective. अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो फोटोडायोड का बहुत important रोल होता है. So we will today discuss about photodiode. Photodiode simply is nothing but it is a PN junction diode, but its use is somehow different from the other general PN junction diode. है कि नहीं? PN junction diode का जो जनरल यूज होता है उससे इसका यूज थोड़ा सा डिफरेंट है. एंड आई कैन से दैट the photodiode is connected in reverse biased condition. The photodiode is used in reverse biased condition just like the Zener diode. जैसे कि हम लोग Zener diode को reverse biased condition में यूज करते थे, similarly photodiode is also used in reverse biased condition. Why this photodiode is used in reverse biased condition I will tell later on. है कि नहीं? But हम ये जानने के लिए कि why this device is called photodiode. इस device को हम photodiode क्यों कहते हैं? You can see that here it is diode, and what is the diode? You know it very well from the very beginning of the class. And this is photo. Photo, what do you mean by photo? We know that the meaning of photo is simply light. है कि नहीं? Light जो होता है उसको हम photo कहते हैं, ठीक है? In terms of physics. So when photodiode, its function is, you can see that it is a device which converts light energy into electrical energy. ये एक ऐसा डिवाइस है photodiode जो क्या करता है? It converts the light energy into electrical energy. ये light energy को electrical energy में convert करता है. So we can also call it as light detector also, है कि नहीं? We can also call it as light detector because it detects the light. लेकिन लाइट को क्या कर देता है? डिटेक्ट करता है. और ये जो डिवाइस है फोटोडायोड, you can also call it as photosensitive device. Photo sensitive device. कौन है वो photosensitive device? This photodiode is a photosensitive device. मतलब it is sensitive towards light. लाइट के तरफ ही थोड़ा सेंसिटिव है. थोड़ा सा भी लाइट अगर उसके ऊपर पड़ेगा तो इट कैन डिटेक्ट द लाइट. ओके, दैट्स व्हाई दिस डायोड इज नोन एज photodiode. So let us understand the working of this photodiode. इस photodiode का वर्किंग क्या है? Let us understand it. As I have earlier told that this is nothing but simply a PN junction diode. ठीक है, अगर ये PN junction diode है, you can understand that what is this region? This region is nothing but the depletion layer. If this is the depletion layer, in the depletion layer there is electric field, you know it, but still I am explaining it. Initially between p type and n type semiconductor there was a junction in the middle. लेकिन मिडिल में जो जंक्शन था, जंक्शन में क्या होता है कि the majority charge carrier of the n type are electrons and in p type the majority charge carriers are the holes. So इसको अगर हम दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको. देखिए, सपोज यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका n साइड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है and in p type मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स. So what happens here, as it is negative in charge and the holes are positive in nature, that's why what will happen, there exists a attractive force. वहाँ पे attractive force काम करता है. Due to that attractive force, what happens, the electrons jump the junction and move towards the hole and then neutralize it. है कि नहीं? ये जो नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ज्वाइन हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए. एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए करंट आल्सो फ्लो थ्रू द जंक्शन. है कि नहीं? यहाँ पे क्या होता है कि इस डायोड में एक करंट भी फ्लो करता है, जिस करंट को हम लोग क्या कहते हैं? इट वाज नोन एज द डिफ्यूजन करंट. राइट? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड हियर, what happens, initially the n type semiconductor was electrically neutral. ये इनिशियली क्या था? न्यूट्रल जैसा बिहेव करता था. राइट? एंड p type semiconductor was also electrically neutral initially. है कि नहीं? But when the electrons from n side jumped to the p side, what happens, इलेक्ट्रॉन का जब डेफिसिट हो गया, यहाँ पे कमी हो गया, there is a reduction in the n type semiconductor. जब n type semiconductor में कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम होने से वहां पे क्या हुआ?
पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गया क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आपका यहां तक आ गया है, सो हमने पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया है। एंड पी टाइप में हमारा ये इनिशियली भी न्यूट्रल था, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहां पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप किया। तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप किया ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इट क्रिएट्स ए डिप्लीशन लेयर। ठीक है, यहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होता है। एंड डिप्लीशन लेयर जब क्रिएट हो गया है, दिस डिप्लीशन लेयर इज आल्सो नोन एज द एंड इनसाइड द डिप्लीशन लेयर देयर इज नो चार्ज पार्टिकल्स। यहां पे कोई भी चार्ज पार्टिकल यहां पे नहीं रहेंगे। ठीक है ना, यहां पे जो भी एटम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे डिप्लीशन लेयर के अंदर, दे ऑल आर द न्यूट्रल एटम्स। उसमें जो भी एटम्स रहेंगे किस टाइप के एटम रहेंगे, यहां पे न्यूट्रल एटम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एंड एज यू कैन सी दैट ड्यू टू द unavailability of the free electrons or electrons, positive charge is developed here, and due to the excess of the electrons, negative charge is developed here. That's why there exists a electric field. यहाँ पे एक electric field exist करता है, and the direction of the electric field is always from positive to negative. ठीक है, तो ये था आपका मैकेनिज्म। और उसके आगे भी है, ये क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज को मैं हर लेक्चर में इसको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। एंड for to work that PN junction as a photodiode, what is done here, that PN junction diode is connected in reverse biased condition. Reverse biased means the positive terminal, the P type semiconductor will be connected with the negative terminal of the battery, and the negative N type semiconductor will be connected with the positive terminal of the cell or battery। हम यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी यूज किए हैं। ठीक है, एंड I can also change the voltage by using a variable resistor or rheostat। ठीक है, and to detect the current in the circuit, जो सर्किट आपको दिख रहा है, to detect the current flowing in the circuit, an emitter is also used here। यहाँ पे मैं एक emitter का भी यूज किया हूँ in order to detect the current flowing through the circuit। But यहाँ पे current कैसे flow करेगा, as it is a photosensitive device, so what will happen when the light will fall on the surface of this PN junction diode or photodiode, what will happen, the current starts flowing। How the current starts flowing we will see, but before the light incidents, before the light falls on the surface of the photodiode, just a minute। देखिए, तो यहाँ पे होता है क्या है कि जब लाइट पड़ेगा, इट इज अ फोटोसेंसिटिव डिवाइस, इट विल डिटेक्ट द लाइट, एंड ड्यू टू द लाइट देयर इज सम मैकेनिज्म हियर ड्यू टू व्हिच द करंट विल फ्लो। बट when there is no light incidenting on the surface of this junction diode or photodiode, जब इस photodiode के ऊपर कोई लाइट पड़ेगा नहीं, still there is some amount of current flowing through the circuit। ठीक है, जब इसका लाइट नहीं पड़ता है तब भी कुछ अमाउंट का करंट फ्लो करता है, जिस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंड दैट करंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय दिस एमीटर। है कि नहीं, वो जो करंट फ्लो करता है उस करंट को वो एमीटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ here the voltage is so adjusted that this emitter is not able to detect that dark current। वो जो करंट फ्लो होता है बिना लाइट का, that current is known as the dark current। ठीक है, और उस करंट को इस एमिटर डिटेक्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज़ उसको हम इस तरीके से एडजस्ट किए हैं यहाँ पे वोल्टेज को, तो एमिटर यहाँ पे उस करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो जो डार्क करंट होता है वो क्या है, the electric current flowing in a photoelectric device when no photon is entering in the device is called dark current। ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि ये जो डिवाइस आपका है, दिस इज ए फोटोइलेक्ट्रिक डिवाइस। फोटोइलेक्ट्रिक डिवाइस मतलब फोटो मींस लाइट, एंड इलेक्ट्रिक तो आप जान ही रहे हैं कि चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, मतलब कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट कर देते हैं, दिस डिवाइस इज नोन एज द फोटोइलेक्ट्रिक डिवाइस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि डार्क करंट का मतलब क्या होता है कि वो एक करंट फ्लो करेगा इस डिवाइस के अंदर। कौन सी डिवाइस है वो, फोटोइलेक्ट्रिक डिवाइस। ये फोटोइलेक्ट्रिक डिवाइस के थ्रू करंट फ्लो करेगा, बट the current will flow when there is no light incidenting on its surface। जब उसके ऊपर कोई भी लाइट नहीं पड़ेगा, और there is no photon entering the device। इस डिवाइस के थ्रू कोई भी फोटोन एंटर नहीं करेगा। फोटोन मतलब क्या होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं the particle nature of light जो बोल रहा है कि the light ray consists of small particles of
लाइट है, छोटा छोटा पार्टिकल्स को लेकर लाइट रे बनी है, एंड दैट स्मॉल पार्टिकल्स आर नॉन अदर देन द फोटॉन्स, जिसके अंदर क्या रहता है, एनर्जी रहता है कि नहीं, दैट्स व्हाई द फोटॉन्स आर आल्सो नोन एज द पैकेट ऑफ एनर्जी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैकेट ऑफ एनर्जी भी उसको कहा जाता है, ठीक है। सो व्हेन ये आपका डार्क करंट क्या है पता चला, डार्क करंट वही करंट है बिना लाइट के जो करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है, और उसको ये एमिटर भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। सो जब उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगा, लाइट इंसिडेंट होने से क्या होता है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इन द डिप्लीशन लेयर देयर आर न्यूट्रल एटम्स प्रेजेंट इन द डिप्लीशन लेयर, है कि नहीं, तो डिप्लीशन लेयर में किस प्रकार के एटम रहते हैं, न्यूट्रल एटम्स आर प्रेजेंट इन द डिप्लीशन लेयर। व्हाई द न्यूट्रल एटम्स आर प्रेजेंट, व्हाट अबाउट द चार्ज एटम्स, चार्ज पार्टिकल के बारे में क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर में न्यूट्रल एटम क्यों रहते हैं, देख लीजिए, सब कांसेप्ट को एक एक करके समझते हुए जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताया कि इन द डिप्लीशन लेयर ओनली न्यूट्रल एटम्स आर प्रेजेंट। हाउ न्यूट्रल एटम्स आर प्रेजेंट, जंक्शन का बात कर लीजिए, यहाँ पे दिस इज एन साइड एंड दिस इज पी साइड, जब ये एन साइड और ये पी साइड है, पी साइड में जो एटम रहते हैं इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स देयर आर हाउ मेनी होल्स, इलेक्ट्रॉन वहां पे कितने हैं, out of 4 electrons 3 electrons are present and there is one hole due to the deficit of electron, है कि नहीं, p टाइप में एक होल रहता है, and in the n टाइप there is an extra electron, ये 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके n साइड से p साइड को गया है, at that time this hole vanishes, ये जो होल था ये होल आपका वेनिश हो जाएगा, ठीक है, ये होल आपका रहेगा ही नहीं, इट गेट्स डिफ्यूज्ड, है कि नहीं। जब ये डिफ्यूज्ड हो गया तो यहाँ पे जो पॉजिटिव था, इस पॉजिटिव को कौन आके बैलेंस कर दिया, नेगेटिव चार्ज आया तो ये न्यूट्रल हो गया। तो सिमिलरली इस तरह का बहुत सारे न्यूट्रल एटम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, न्यूट्रल एटम यहाँ पे है, एंड ये न्यूट्रल एटम का कुछ रोल नहीं होता है करंट फ्लो में, ठीक है ना। जब न्यूट्रल हो गया तो डिफ्यूजन लेयर में आपका करंट भी नहीं रहता है, ठीक है। तो अभी आपको पता चला कि द एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द डिप्लीशन लेयर दे ऑल आर न्यूट्रल एटम्स। सो व्हेन द लाइट एंटर्स इनटू द डिप्लीशन लेयर, जब लाइट डिप्लीशन लेयर के अंदर एंटर करेगा या फिर डिप्लीशन लेयर के ऊपर लाइट पड़ेगा, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं दे एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, लाइट एनर्जी से वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, समझ में आ रहा है क्या है। ये जो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे दिख रहा है डिफ्यूजन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, these electrons gain energy from the light energy and they get excited, लाइट एनर्जी से एनर्जी गेन करके वो एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइटेड होने के बाद क्या होगा कि द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द वैलेंस बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बॉन्ड में था, सपोज ये इलेक्ट्रॉन अभी एनर्जी गेन किया, एनर्जी गेन करने के बाद क्या होगा कि एक्साइटेड हो जाएगा एंड इट विल कम आउट ऑफ द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड से बाहर निकल कर ये आ गया, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रेडी टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन अभी बाहर निकल कर आ गया है ये अभी फ्री हो गया है, एंड दिस इज रेडी टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को ये कैरी कर पाएगा। बट यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक नहीं जाना है, बस हमको ये पता चला कि एनर्जी, लाइट एनर्जी गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होके बाहर आ गया है फ्रॉम द कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, वहां पे जो बॉन्ड था बॉन्ड से बाहर निकल कर वो इलेक्ट्रॉन आ चुका है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है, द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज माइनस एंड द चार्ज ऑफ द एटम, जो एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये जो एटम है, इस एटम का चार्ज क्या हो गया, अभी पॉजिटिव हो गया, एंड देयर इज अ चांस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लस एंड माइनस, ये पॉजिटिव एटम एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, डेफिनेटली इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, है कि नहीं। बट ये अट्रैक्ट होगा क्या, ये अट्रैक्ट नहीं होता है, व्हाई इट डजंट अट्रैक्ट, द अट्रैक्शन फोर्स डज नॉट वर्क बिकॉज़ देयर इज ए स्ट्रॉन्गर फोर्स देन दैट अट्रैक्टिव फोर्स, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उससे भी और एक स्ट्रॉन्गर फोर्स यहाँ पे है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E is equal to F by Q, है कि नहीं। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस ए फोर्स F ऑन द चार्ज Q, है कि नहीं। ये जो फोर्स है आपका, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जीक्यूट ए फोर्स F, है कि नहीं। एंड दैट फोर्स, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या हो गया है कि जो डिफ्यूजन लेयर के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज एटम और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बन गया है। सपोज दिस इज पॉजिटिव
आपको इस डिप्लीशन लेयर में बाहर समझा रहा हूं, ठीक है। ये है आपका डिप्लीशन लेयर, राइट, and this is the direction of the electric field from positive to negative, and in the depletion layer the positive atom is present and negative electron is also present, ठीक है। ये जो पॉजिटिव एटम है आपका, पॉजिटिव एटम, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव एटम है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, सो व्हाट विल हैपन टू देम, उनको क्या होगा, ये कहां मूव करेंगे, दिस नेगेटिव विल सिंपली be attracted towards the positive and this positive will move towards the negative due to the electric field, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है कि नहीं। सो तो यहाँ पे आपका जो भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा ड्यू टू द रिमूव ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर चला गया, और यहाँ पे जो एटम बचा है, जो जिसका चार्ज अभी पॉजिटिव हो गया है, इट विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर चला गया। चले जाने से क्या होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था, फिर दूसरा फोटोन आया, दूसरा फोटोन आएगा तो फिर सिमिलर प्रोसेस और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, रिमूव होके कहां आएगा, इस पॉजिटिव के पास आएगा, नेगेटिव है, और उस इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी ज्यादा रहता है ड्यू टू द लाइट एनर्जी, है कि नहीं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो ढूंढेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव उसको कहां मिलेगा, यहाँ पे हम जो सप्लाई दिए हैं इधर पॉजिटिव है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव विल अगेन सर्च फॉर पॉजिटिव, तो ये इस रास्ते में फिर आना शुरू कर देगा। जब इसके थ्रू फ्लो करेगा, दिस एमिटर विल डिटेक्ट द करंट, है कि नहीं, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस पाथ में मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा यहाँ तक पहुंच गया, पहुंचने के बाद यहाँ पे जो होल है, इस होल को क्या करेगा, डिफ्यूज कर देगा, समझ में आ रहा है। अगेन द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन दैट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द एटम, ये जो चार आपको दिखता है, जो चार एटम, एक एक एटम करके क्या होता है, वो जो न्यूट्रल एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकलेंगे, बाहर निकलकर ये पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर इधर से यहाँ आएंगे, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है, इस पाथ में चलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का होल है उसको डिफ्यूज करेंगे, है कि नहीं, फिर इस पाथ में कंटिन्यूअसली एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाएंगे एंड कंटिन्यूअसली चार्ज यहाँ पे आपका फ्लो होता रहेगा, ठीक है। एंड द एमिटर व्हिच इज प्रेजेंट हियर इट विल डिटेक्ट द करंट, ठीक है। अभी आपका सवाल ये आ रहा है कि जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो तो हो गया, ठीक, मैं मान गया, बट व्हाई दिस डिवाइस इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस कंडीशन, इसको रिवर्स बायस में क्यों कनेक्ट कर दिया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट एज दिस डिवाइस इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन, जब हम रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पे मैं आप लोगों को बताया था, when the PN junction is connected in reverse biased condition, at that time the width of the depletion layer increases। जब हम एक PN junction डायोड को रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कनेक्ट कर देते हैं, at that time the depletion layer जो होता है its width increases, उसका width बढ़ जाता है, and in case of forward biased condition reduce हो जाता है उसका जो width है। कैसे इंक्रीज होगा, देखो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आपका पी साइड में होल है एंड यहाँ पे नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो होल्स विल मूव टुवर्ड्स दिस, होल जो है इस तरफ मूव करेंगे, एंड हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है एंड पॉजिटिव है, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे विल अट्रैक्ट होने से इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ मूव कर जाएंगे, सो द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज एज डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ने से क्या होगा, एज आई हैव टोल्ड दैट मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी द न्यूट्रल एटम्स आर प्रेजेंट इन द डिप्लीशन लेयर। अगर डिप्लीशन लेयर का विड्थ ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट का क्या रहेगा आपका न्यूट्रल एटम रहेंगे, और जितना ज्यादा न्यूट्रल एटम यहाँ पर रहेंगे, लाइट पड़ने से उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा रिलीज होंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। इसीलिए ये भी एक उसका बेनिफिट है to connect why this photodiode is connected in reverse biased, okay, reverse bias में भी इस तरह भी कनेक्ट करने से ये बेनिफिट मिलता है उसको, so this device is also connected in reverse biased condition, ठीक है, रिवर्स बायस में इसको इसीलिए हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो मैं आप लोगों को बताया अभी, दिस वाज द वर्किंग ऑफ दिस फोटोडायोड, कि फोटोडायोड काम कैसे करता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
एंड लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ द फोटोडायोड। ये जो फोटोडायोड है उसके एप्लीकेशन के पास हम अभी चलेंगे, ठीक है। सो लेट अस गो टू द एप्लीकेशन ऑफ फोटोडायोड। Here I have shown you one of the application of photodiode, and what is that application? That is the burglar alarm. Burglar alarm मतलब क्या होता है कि उसका एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे होता है फोटोडायोड में देखिए। तो मान लीजिए कि घर के अंदर अगर कोई बाहर से कोई घुस रहा है या फिर एंटर कर रहा है ना, एट दैट टाइम द अलार्म जो यहाँ पे मैं साउंड लगाया, हॉर्न लगाया, वो बजता रहता है, ठीक है। ये कैसे बजता है उसका एप्लीकेशन थोड़ा देख लीजिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फोटोडायोड इज अ फोटो सेंसिटिव डिवाइस, लाइट को ये तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं एक इंफ्रारेड सोर्स ऑफ लाइट लिया हूं, ठीक है। इंफ्रारेड सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे लिया हूं। तो यहाँ से लाइट रे जा रहा है, ठीक है। ये आपका इंफ्रारेड सोर्स, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द आवर मेन डोर। ये आपका घर का मेन डोर है, यहीं पे जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मेन डोर में जब हम उसको लगाए हैं तो लाइट रे इस तरफ से एक साइड से दूसरी साइड को पास हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है दिस इज द डायोड। यहाँ पे आप लोग लगाए हैं फोटोडायोड, एंड ये जो रीजन आपको दिख रहा है दिस रीजन इज नथिंग बट सिंपली आई हैव शोन हियर द डिप्लीशन लेयर। यहाँ पे मैं आपको बस डिप्लीशन लेयर दिखाया। डिप्लीशन लेयर के अंदर जाकर आपका लाइट इंसिडेंट हुआ। लाइट इंसिडेंट होने के बाद द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल एटम्स। यहाँ पे जो न्यूट्रल एटम्स है उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। रिमूव होकर इस तरफ मूव करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। जो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे ही सर्किट में मान लो कि चल रहा है, ठीक है। सर्किट के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे आपका एक अलार्म का एक प्लंजर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो प्लंजर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, जब मान लो कि समवन इज एंटरिंग इनटू द रूम और हाउस, कोई अगर मान लो कि इस हाउस के अंदर एंटर कर रहा है, जब ये लाइट के थ्रू पास होकर आएगा तो लाइट विल कट ऑफ। अगर कोई आएगा पास होगा तो लाइट जो जा रहा था मतलब उसका जो पास हो रहा था लाइट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एंड जिस समय लाइट का ब्रेक हो जाएगा एट दैट टाइम नो करंट विल फ्लो। समझ में आ रही है? लाइट पड़ेगा तो करंट कहां से फ्लो करेगा, ठीक है। और जो भी करंट फ्लो करेगा, हम पढ़े थे कि डार्क करंट, उसको तो कोई डिटेक्ट कर ही नहीं पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, मतलब करंट फ्लो में जो ऑब्स्टेकल आ गया, जो करंट फ्लो होना बंद हो गया, जब सर्किट बंद हो जाएगा, सर्किट में जो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा एट दैट टाइम दिस प्लंजर विल फॉल ऑन दिस अलार्म। ये जो अलार्म लगाया गया है इस प्लंजर क्या होगा उसके ऊपर, तो उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। जब प्लंजर यहाँ आ गया, जो प्लंजर यहाँ पे था वो भी यहाँ आ गया, तो ये जो सर्किट था, ये सर्किट आपका अभी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। सर्किट कंप्लीट होने से इसके थ्रू भी करंट फ्लो करेगा। जब इस सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक हॉर्न लगाए हैं। सो दिस हॉर्न विल स्टार्ट मेकिंग साउंड, सही है। तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि अलार्म बजने लग जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। कौन? बर्गलर अलार्म। तो इसका जो एप्लीकेशन है, इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन यू विल फाइंड इन द शॉपिंग मॉल्स, है कि जो शॉपिंग मॉल्स होता है वहां पे आपको ज्यादा एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि एक मॉल के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है, और उसके थ्रू आप पार होके जाते हैं। यहाँ पे इस प्रकार का अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। इंफ्रारेड सोर्स, फोटोडायोड, है कि नहीं। एक आदमी अंदर घुसेगा तो लाइट कट ऑफ, सो सेंसर इज प्रेजेंट हियर, इट विल डिटेक्ट दैट लाइट इज कट फॉर वंस। एक बार अगर लाइट कट गया दैट मींस वन पर्सन हैज एंटर्ड इनटू द मॉल, ठीक है। दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन एंटर्ड, अगेन देयर इज कट ऑफ, है कि नहीं। सेंसर विल डिटेक्ट यस second person has entered. Similarly, in this way, the managers of the mall they can count that how many persons have entered into the mall today for shopping, है कि नहीं। शॉपिंग के लिए आज मॉल के अंदर कितने लोग आए थे उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है। आप सुने होंगे, आप सोचोगे क्या अलार्म तो नहीं बजता है सर, अलार्म नहीं बजता है, बट देन द बीप साउंड, आप जब पार होके जाते हैं उसके थ्रू जब एंटर करते हैं पीप पीप करके बीपिंग साउंड होता है, ठीक है ना। बीप बीप साउंड होता है वहां पे, ठीक है। और उसका और एक एप्लीकेशन भी है नोट काउंटिंग मशीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर में कहते हैं, ठीक है। काउंटर इज यूज्ड, दिस इज आल्सो अ काउंटर। नोट बैंक में भी उसका एप्लीकेशन है, क्योंकि ये क्या करता है, कितने लोग आ रहे हैं उसको काउंट कर लिया, दैट इज द काउंटर, है कि नहीं। सिमिलरली इसका एप्लीकेशन आपको और कहां पे देखने के लिए मिलेगा,
बैंक में जो नोट काउंट होता है वहां पर भी इस काउंटर का यूज होता है। काउंटर मतलब कि फोटोडायोड इज यूज्ड एज ए काउंटर। फोटोडायोड को हमें काउंटर के हिसाब से यूज करते हैं। सपोज दिस इज द लाइट इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा है। जब एक नोट ऐसे आता है, एक नोट आया तो लाइट कट, तो काउंट कर लिया कि एक नोट पार हुआ, दूसरा नोट गया फिर से लाइट कट ऑफ, तीसरा नोट गया फिर से लाइट कट ऑफ, फोर्थ नोट गया फिर से लाइट कट ऑफ। जितने बार नोट पास होगा उस लाइट के थ्रू एक बार क्या करता है वो लाइट को डिटेक्ट करता है। जितने बार लाइट कट हुआ उसी हिसाब से काउंट कर लेता है कि कितने तो नोट यहाँ पे है, उसी हिसाब से टोटल काउंट कर लेते हैं कि कितने मनी है। नोट काउंटिंग मशीन जो होता है, नोट काउंटिंग मशीन में फोटोडायोड को हम काउंटर के हिसाब से यूज कर देते हैं, है कि नहीं। द फोटोडायोड काउंट्स द नंबर ऑफ नोट्स इन द नोट काउंटिंग मशीन इन द बैंक्स, है कि नहीं। तो ये था आप लोगों के फोटोडायोड के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है देन आई रिक्वेस्ट यू दैट अगर कहीं पर अगर आपका कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एलईडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है देन आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।